I get some ideas and I elaborate in my way. कि okay चलो ये करते I will fold it like this, I will do plate it like this, because presentation is very important. Welcome to Safari India's exclusive interview with Chef Himanshu Pandey, Executive Chef at the Imperia by Dhaba in New Jersey, and the author of his debut memoir, The Heat and the Hustle, A Chef's Path from India to the USA. Welcome, Chef. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, what inspired you to write your first book, The Heat and the Hustle? And how Uh, did your childhood in Uttarakhand shape the way you think and cook about food? Basically, I will say it's inspired by my roots in Uttarakhand. From my journey as an immigrant chef, I came from Uttarakhand. So basically, in my childhood, it's in my blood. You can see it's in my blood. सो जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा और दादी नाना दादी सब लोग एक्चुअली उत्तराखंड में कल्चर है कि वी हैव टू कुक टुगेदर। ऐसा नहीं है कोई कभी भी खाए नहीं, हम साथ में बनाते हैं, साथ में खाते हैं और साथ में ही सब कुछ करते हैं। तो उससे क्या होता है, लर्निंग बढ़ती है कि हाँ रोटी कैसे बन रही है, सब्जी कैसे बन रही है, चूल्हे पे चीज़ें कैसे बन रही हैं। तो वो इंस्पिरेशन पहले से बचपन से ही थी। सो देन और यू नो दैट देयर इज अ माउंटेन, हिल एरिया एंड ऑल। Right. सो फूड इन माय कल्चर है ना। सो वहाँ से लर्निंग होते होते छोटी छोटी चीज़ें सीखते 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 तो राइट नाउ आई एम इन यूएसए एंड several, just I want to share one memory with you. Like we have one dish we call lapsi. So whenever we sleep at night, so it's like a sweet dessert. So lapsi is made of like wheat flour, जो गेहूं होता है, लेकिन जो उत्तराखंड का थोड़ा होता है वो थोड़ा मोटा होता है। और 4-5 इंग्रेडिएंट्स है जिससे बनता है वो। बेसिकली आटा हो गया, गुड़ हो गया, जैगरी कहते हैं जिसको, घी हो गया। अगर घर में कार्डमम है, ड्राई नट्स है, तो यू कैन पुट इट। थोड़ा घी है तो यू कैन पुट इट। अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल डिश, बट इट्स गिव यू एनर्जी बूस्ट। बिकॉज चाइल्ड विल यू नीड अ प्रोटीन एंड लाइक दिस। तो बच्चे खाना नहीं खाते, तो वो एक एनर्जी सोर्स भी था हमारे लिए बचपन में। So, like in your book, you bring back forgotten dishes from Yeah. Uttarakhand. So, could you tell us about one of them and how you have given it a modern touch? Basically, if you say about the modern touch, in my basically my book is all about the story of mine and some of recipes which my favorite. Maybe in future I will launch one more book. It's back to my roots, but not now. So basically, if you talk about the forgotten recipe, so it's I reviewed the kafuli. There is one dish made by the spinach and all, so we call kafuli. एंड देर इज वन डिश वी कॉल बाकर की तरी, मतलब बकरी, जो बकरी होती है, गॉट होता है, उसकी तरी। तरी मतलब इट्स अ ग्रेवी, बकरी मतलब। सो मैंने उसमें मॉडर्न टच इस तरीके से दिया था कि फॉर एग्जांपल आई यूज टू टेक अ लैम्ब शेंक, तो आई मेड अ नॉर्मल करी ऑन इट, राइट। बट करी को मैंने पेस्ट करके उसमें जाखिया, अपना एक उत्तराखंड में एक सीड्स होती है, वो मस्टर्ड की तरह होता है, इट्स अ कॉल्ड जाखिया। जाखिया, तो उसमें जाखिया और अजवाइन का मैंने टेम्परिंग करके, राइट, उसमें टेम्परिंग डाल के और थोड़ा सा स्मोक देके, क्योंकि पहाड़ी एरिया, जो पहाड़ी वुड होती है, फॉर एग्जांपल जो पाइन नट ट्री होते हैं, चील के पेड़, तो उनमें एक अलग स्मोक होती है। जब भी आप उसमें खाना बनाते हैं तो यू विल फील लिटिल बिट स्मोकी फ्लेवर एंड समथिंग एल्स, राइट। सो Right. मैंने वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो बहुत हिट आइटम थी। सो आई ट्राइड इन रेडिसन इंदौर, जन आई वाज इन रेडिसन इंदौर। So I basically, it's not in the menu, but I give it like a chef special dish. So it's बहुत अप्रिशिएट किया था उसको, उस डिश को। People say food has a language of its own. So, how has cooking helped you connect India and America? Yeah, basically in America there is a different culture about the Indian food, right? Indian food little bit change here because of the spices and all. Because earlier when the food started in US, right, or America or any country of this, so that time you not get so much ingredients, right? If you not get so much ingredients, you always do something customized, and ओके ठीक है, हल्दी नहीं मिली, ओके विल पुट समथिंग एल्स, ओके मिर्ची नहीं मिली, ओके विल पुट समथिंग एल्स। तो कस्टमाइज करते करते थोड़ा सा फूड अलग है। ऑथेंटिक फूड भी लोग खाते हैं, स्पाइसी भी खाते हैं, दे रिस्पेक्ट द फ्लेवर्स एंड ऑल। बट एक जो कल्चर चलता हुआ आ रहा है इंडियन अमेरिकन फूड का, राइट, लाइक देर इज अ टिक्का सॉस इज लिटिल डिफरेंट, मखनी सॉस इज लिटिल डिफरेंट, बिकॉज मखनी सॉस दे डोंट पुट एनी नट्स हियर in US. India, we usually we put little cashew nut and all, because there is a in this time there is a so much of allergen, राइट। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि एलर्जन का ध्यान रखते हुए काम करना है।
अपने ऑथेंटिक मसालों को यूज करना है, ताकि फूड से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऑथेंटिसिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट स्टिल वी कस्टमाइज दस थिंग्स इन अ स्पाइस लेवल, व्हाट आई बिलीव। आपकी story, it's all about hard work and chasing या dreams. So, what advice would you give to young chefs or immigrants who want to build a career abroad? बेसिकली बी but be patient, you know, मैं क्योंकि when I started, you know, I just clear my 10th standards and start my hotel management. Then I did my 12th, you know, academic and all. Then graduation, then computer course. So one thing is very common: be patient. कि, okay, I'm in a right path, right? I'm in a right path. Stay true. सच्चे इंसान रहो, ठीक है, रिस्पेक्ट योर इंग्रेडिएंट्स, नेवर अफ्रेड टू हार्ड वर्क। तो मैं कभी डरा नहीं कि यार ये करता हूँ, चलो गलती होगी कोई नहीं, चलो ट्राई तो करता हूँ। सो ट्राई करने से मत, क्योंकि इन व्हाट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स। अगर वो गलतियां नहीं करता तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। तो गलतियां करो, गलती से डरो मत, बट सेम गलती रोज मत करो। Right, we all और learn from our उसको mistakes. अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, रेस्पेक्ट करो इंग्रेडिएंट्स की, और लोगों से सीखो। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको सीखो। डोंट बी एक्शन पे रिएक्शन मत करो। मतलब कई लोग क्या करते हैं, उनको सिखाओ तो वो रिएक्ट कर देते हैं, तो डोंट रिएक्ट, जस्ट लर्न। जो आपके पास है वो तो आपके पास ही है ना। अगर आप दो चीजें और सीख लोगे तो दिस इज गुड फॉर यू। सो छोटी छोटी चीजें सीखते सीखते आज की डेट में, ठीक है, आई एम डूइंग गुड एंड ऑल्सो आई एम स्टिल लर्निंग बेसिकली समवन। समटाइम आई लर्न फ्रॉम माय सन। Yesterday is a one, yesterday I will share one incident. It's very, you know, it's very small thing, but my thought process you can understand. मेरा बेटा था मेरे साथ, ही इज अ 10 years old। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो ही माई एक मेरा छोटा बेटा जो यंगर सन है, ही इज अ 3 years old, so he like ice cream, so he brings some ice cream, vanilla ice cream and all, so he having his ice cream. Then suddenly my elder son came, his name is Naman. So Naman came and he asking for the french fry. It's a normal thing. And suddenly, I don't know what he think, because he's also into in kitchen cooking, you know, always do mama's help and all. So suddenly he start dipping the, you know, he आइसक्रीम को एज अ डिप यूज करने लग गया, फ्रेंच फ्राई के साथ आइसक्रीम खा रहा है। मैंने कहा आइसक्रीम फ्रेंच फ्राई के साथ क्यों खा रहा है तू? सडनली मुझे हिट किया, मैंने कहा अरे क्यों ऐसा कर रहा है? तो उसने एक खाई, दो खाई, तीन, चार, ही एंजॉइंग। तो आई ऑल्सो ट्राइड वन वन पीस, ठीक है। मैंने कहा तो गुड आइडिया है, मतलब आई कैन डू समथिंग विद पोटैटो एंड वनीला आइसक्रीम, और समथिंग आइसक्रीम बेस, और समथिंग इन माय न्यू शेफ्स टेबल मेन्यू। बिकॉज इन शेफ्स टेबल मेन्यू आई ऑलवेज बिलीव कि आई विल गिव यू समथिंग डिफरेंस बट यू नेवर हैड बिफोर, यू नो, विद ऑथेंटिसिटी लिटिल फ्यूजन। तो आई गेट आइडिया फ्रॉम देयर कि अरे यार ये अच्छा आइडिया है। एंड सेम थिंग हैपन लास्ट संडे, माय वाइफ मेड समथिंग फ्रॉम सेमोलिना। She just soak semolina and put some yogurt on it and little bit rice flour or something, salt, pepper and all. And she made some, because I am diabetic also. So she made some chila for me. And chila is so tasty. I had maybe four, five. And I told her, this is good. Next time I will try for the different things, you know, like a someone and other stuffing and like a tofu or something like avocado. Or so I get some ideas and I elaborate in my way. कि okay चलो ये करते I will fold it like this, I will do plate it like this, because presentation is very important. Your book also talks about culture and Yeah. identity. So, how do you think food helps keep traditions and memories alive? So basically in my book, if you will see, you know, very normal guy जो कि उत्तराखंड में पैदा हुआ था, ठीक है। एक छोटी सी बात है, जैसे आपको शायद पता होगा, बच्चे ब्रिश बर्थ बोलते हैं, जो उल्टे बच्चे, मतलब बेसिकली Right, right. इट्स नॉट इन नॉर्मल वे लाइक दैट। सो वैसे एक बच्चा हुआ था, ठीक है, बहुत जिद्दी था, यू नो, और शैतान था, आप कह सकते हैं, माँ बाप को बहुत परेशान करता था। और एकेडमिक में मैं फेल हुआ हूँ, है ना, आई फेल इन एकेडमिक ऑल्सो। बट सडनली, यू नो, द ग्रेस ऑफ गॉड की, है ना, एक अच्छा इंसान था अंदर, तो ग्रेस ऑफ गॉड की थोड़ी, यू नो, थोड़ी रहम बरसाई मेरे ऊपर। सो आफ्टर 8th क्लास आई गेट समथिंग, यू नो, आई डोंट नो, आई इनसाइड एंड आई स्टार्ट स्टडिंग, एंड टिल नाउ आई ऑलवेज बी अ टॉप, like 70-80% like that I get the marks and all। जो बच्चा 33% ला रहा था, वो सडनली, तो मतलब वो था अंदर ना वो चीजें, तो लाइक दैट। सो उत्तराखंड से जो बच्चा था वो सीख रहा था चीजें ना बेसिकली, बट उसको पता नहीं था उसको यूज क्या करना है। वो देख रहा है कि यार ये पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है जी, हम ये पहाड़ों का पानी क्यों पीते हैं, यहाँ तो फिल्टर है ही नहीं, ये पानी गंदा तो नहीं है, देखो ऊपर पहाड़ से आ रहा है, उसमें होता है ना, बच्चे के दिमाग में थॉट होते हैं। तो हमारे गाँव में एक बेरी होती है, येलो बेरी, उसे बोलते हैं हिसालू। यार हम ये क्यों खा रहे हैं, ठीक है, इसमें कांटे होते हैं। एक होती है किलमोड़, किलमोड़ की जल से क्या होता है, वो डायबिटीज में भी बहुत काम करती है, खट्टा एक फ्रूट होता है, उसे बोलते हैं किलमोड़ उत्तराखंड में।
तो ये किलमोड़ इतना खट्टा क्यों होता है और ये मीठा क्यों होता है, तो मतलब ऐसे थॉट मेरे दिमाग में थे, बट वो रास्ता नहीं बताता कि यार मुझे करना क्या है। तो जब वो गॉड ने आशीर्वाद दिया कि चल आप पढ़ाई कर, तो जब पढ़ाई करी तो वो वही मिल गया कि यार चलो आईचम करता हूँ। तो मुझे लगा आईचम इज अ वेरी इजी थिंग, पता चला वहाँ सब कुछ इंग्लिश में है। तो अब इंग्लिश में काम करना स्टार्ट किया। जब इंग्लिश में काम करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार अब तो जॉब भी चाहिए, फिर ट्रेनिंग लगना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ से धीरे 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 सीखता सीखता मैंने कहा ठीक है, नहीं मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी लाइफ में, मुझे एक चीज़ पता थी कि यार मुझे अपना काम करना है। ठीक है, आज 6,000 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 8 भी होंगे, वो 10 भी होंगे, वो 13 भी होंगे, लाख भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 लाख भी होंगे, और वो हुए लाइफ में। तो आई चूज माई वे कि मैं ऐसे ही काम करूंगा। लोग मेरे को आके बोलते थे कि यार यार मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, मैं तो इतने कमा रहा हूँ, तू तू कितने कमाता है? मैंने कहा जी मेरी तो 6,000 सैलरी है। ये बात है 2008 की, जब मैं हिल्टन जनकपुरी में था। मेरे कट पिटा के 6,000 आते, उसमें से 2 मम्मी को देने हुए, थोड़ा घर में खर्चा, भाई बहन सब थोड़ा बहुत चलता रहता था ऐसे ही। तो बट आई रियलाइज वन थिंग, यार मैं आई नेवर लाई, अगर मैं किसी को बोलता है मेरे को 20,000 मिल रहे तो मेरा यकीन भी कर लेते होटल में, मतलब 20,000 इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ डाउन टू अर्थ, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ। आज से कोई नहीं, 30 नहीं 50 भी होंगे, लेकिन वो एक टाइम आएगा ना, उसके लिए मुझे काम करना है। सो इफ आई एम डूइंग इन दिस पोजिशन, तो मुझे अगली पोजिशन का काम करना है, तभी तो वो सैलरी बढ़ेगी ना। Right. सो बच्चे वो ही नहीं सोचते, वो सोचते हैं यार प्रमोशन मिल जाए, लेकिन यार प्रमोशन के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई दे मेंटेन हायर की ना। सो वो चीजें बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको वो काम करना पड़ेगा, अगर आपको उस जगह पहुंचना है तो वो काम भी तो करना पड़ेगा, अपने को उस लायक बनाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि यार मैं अगर जनरल मैनेजर बनूंगा तो मैं ये करूंगा, अगर मैं F&B डायरेक्टर हूंगा तो मैं ये करूंगा, अगर मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूंगा तो हाउ आई विल वर्क, हाउ आई विल कैरी माई टीम विद मी। इट्स नॉट लाइक आई विल कैरी माई सेल्फ, नो, आई विल कैरी माई टीम। सो टीम इज एवरीथिंग। So, lastly, what is the main message you hope readers, whether chefs, food lovers, or immigrants, will take away from the heat and the hustle? Basically, this book is basically all about, in my family also, all over the world, I will tell you. कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब बेसिकली उनको माँ बाप कहते हैं नहीं यार इसका क्या होगा, हे व्हाट ही विल डू इट इन फ्यूचर, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है। जस्ट कीप पेशेंस, let them enjoy their childhood, right? They will one day, they will definitely do something because gods have a different plan for everyone. Thank you so much, Chef Pandey, for sharing your inspiring journey and insights with us. And thank you Thank you so so, so, much. so much.